Education is perfect. Politics is perfect. Today on 14th of July 2026 from Delhi, I wrote these two notes. Education is perfect and politics is perfect. Education is perfect. Politics is perfect. Politics is perfect. So let's quickly read. Education is perfect. There's absolutely no problem in education, teaching methods, and evaluation system. It is perfect. Brain and body can understand only survival. Rest everything is meaningless. Therefore, education can't be used for anything other than survival. Survival requires pattern recognition and memory. Memorizing whole syllabus a night before the exam and then forgetting everything after the exam is a divine phenomenon. Because education was just not supposed to interfere in life, relationships, society, and politics. Just perfect system. Now, politics is perfect. Everything is perfect already. Everything is field tested. Its description exists in the words, not on the ground. Since description is imaginary, it has no ends. Good days never come. They don't exist. Only boredom does. Buriyat, boredom does. After all the money, power, and fame, one realizes that truth. After all the money, power, and fame, one realizes that truth. People who live 9 to 5 already know that. Instinctively, not in words, आप उनको जाकर पूछोगे तो ऐसा कहेंगे नहीं, but the way their body is operating, it is evident that they know this fact that boredom is the reality, and this body and this brain is only interested in survival. So they instinctively and intuitively know that, because survival requires contact with ground reality. क्या बोला है? After all the money, power, and fame, one realizes that truth. People who live 9 to 5 already know that, because survival requires contact with ground reality. People living in survival never get bored. That's why they don't want to change society or politics. They know it's all comic and reality is field tested and couldn't have been better. So, this is again about the perfect world, the enlightened world that I have started to experience and perceive after I got enlightened on 19th of Feb 2026. So let's read one by one the lines. Education is perfect. Education is perfect. Economy is perfect. Relationships are perfect. Planet is just perfect. प्लैनेट के बारे में एक हमने एक कॉन्सेप्ट हमने समझाया था लास्ट लेक्चर में. सीजेपी फर्स्ट एक्सपीरियंस एट सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर हमने एक लेक्चर में समझाया था लास्ट लेक्चर में कि जो लोग जिन लोगों के पास हजारों और लाखों जेसीबी मशीन्स है जो धरती खोदते रहते हैं, जो पूंजीपति है, जो अंबानी अडानी वगैरह है, they know this for fact in reality that the country does not exist, the planet does not exist, there is no mother earth, no motherland, there is no matrabhumi. All these are only words which are spread through movies and songs and poetries and other form of entertainments sponsored by the state, which is interested in accumulation of resources. बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि जैसे कि अभी बात आएगी पॉलिटिक्स के अंदर. सो एजुकेशन इज परफेक्ट. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम. इट इज परफेक्ट. Brain and body can understand only survival. Rest everything is meaningless. Therefore, education can't be used for anything other than survival. Survival requires pattern recognition and memory. Memorizing whole syllabus a night before the exam and then forgetting everything after the exam is a divine phenomenon. Divine phenomena क्यों कहा गया है इसे? डिवाइन फेनोमेना क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो इसके पीछे जो थॉट का कॉन्सेप्ट है वो बेसिक प्रेमाइस है एनलाइटनमेंट मार्केट में
अपना प्रोडक्ट, अपने लेक्चर्स, अपनी रिट्रीट्स और एक्सरसाइज को सेल करने के। वो क्या है कि जो इंसान है, ये जो इंसान दिख रहे हैं, इनके दिमाग में एक माइंड नाम की चीज है। वो माइंड में विचार होते हैं और विचार समस्या का कारण है। विचार ही समस्या है, तो उस विचार से मुक्ति पाने के लिए हम ऐसे ऐसे आपको रास्ता सुझाएंगे। जबकि सच्चाई क्या है, अब सच्चाई ये जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो कैसे है, ये तो बहुत सारे लेक्चर्स पीछे चल ही रहे हैं। बट सच्चाई क्या है कि माइंड, इंडिविजुअल माइंड डज नॉट एग्जिस्ट, द वर्ल्ड माइंड एग्जिस्ट। और वर्ल्ड माइंड के एग्जिस्ट होने की शुरुआत कहां से होती है, जिसको यूजी ने कहा मदर्स आर ऑल मॉन्स्टर्स। सो मदर पहले बोलती है कि बोलो माँ, बोलो पा, तो वहां से बच्चे के अंदर डिवीजन होना शुरू होता है। उसको पता चलता है कि उसका अस्तित्व है, तो सामने वाला कोई है, उसका अस्तित्व है, उससे उसको प्यार करना है और उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी है, और वो सामने वाला उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रखेगा। फिर ऐसे ही गिलास है, ये चम्मच है, ये दूध है, ये पानी है, ऐसे कर करके उसमें डिविजन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू होती है। उससे सब लोग डिवाइड नहीं हो पाते। कौन लोग डिवाइड हो पाते हैं? जो एजुकेशन को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, एजुकेशन के बहुत डीप में जाते हैं, और उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो प्रोफेशनल पर्पस के लिए है, अगर वो सर्वाइवल के लिए है। इफ योर प्रोफेशन, इफ योर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन अगर आपके ऑक्यूपेशन के लिए नेसेसरी है डीप में जाना, ऑक्यूपाइड रहने के लिए, किसमें ऑक्यूपाइड रहने के लिए? दो सूर्योदय के बीच में ऑक्यूपाइड रहने के लिए, या अगर उसमें नींद भी आप कंसीडर कर रहे हैं तो एक सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ऑक्यूपाई रहने के लिए। बिकॉज जो 99 to 5 पे जो लोग जॉब वगैरह में जाते हैं और ट्रैफिक जाम वगैरह करते हैं, वो एनलाइटेड लोग हैं, और वो इंट्यूटिवली एंड इंस्टिंक्टिवली इस बात को जानते हैं कि जीवन में कुछ करने का है नहीं और मरने का भी नहीं। जिंदगी में कुछ करने का नहीं है, और कुछ करने के पीछे कुछ कारण नहीं है, और मरने का भी नहीं है, और मरने के पीछे भी कुछ कारण नहीं है। तो फिर क्या करें? तो ऑक्यूपाई रखते हैं अपने आप को। तो किस चीज में ऑक्यूपाई रख सकती है ये बॉडी और ब्रेन अपने आप को? किस चीज में ऑक्यूपाई रख सकती है? जिसकी उसको ट्रेनिंग है और जिसमें वो केपेबल है। वो किस चीज के लिए केपेबल है? वो सर्वाइव करने के लिए केपेबल है, वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए केपेबल है, वो मेमोराइज करने के लिए केपेबल है। तो वर्ल्ड माइंड से शुरुआत हुई थी कि मैं इंसान हूं। However, this is not a truth. This is so-called container, whatever it is. It cannot be understood or experienced by thought, but we can. Who will stop us? The thought cannot stop us. So nobody can stop the thought from imagining anything. So we have imagined that we are humans and this person is Hitesh Shakya. We are persons, we are individuals and this person is Hitesh Shakya. And then उसकी ये मेंटेलिटी है, उसकी ऐसे ऐसे विचार है, ऐसे ऐसे उसकी सोच है। तो ऐसे उसके विचार नहीं है, ऐसे उसकी सोच नहीं है। ये जो नाम रखा हुआ था ना, ये जो इंसान रखा हुआ था, ये जो पर्सन शब्द रखा हुआ था, ये टेबल पे रखा हुआ था। तो दो इंसान जब बात कर रहे होते हैं और विचार साझा कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में टेबल पर शब्द रखे होते हैं। उन शब्दों को उठा उठाकर, उन लॉजिक्स को उठा उठाकर एक मोती से दूसरा मोती एक माला में पिरोने की उन्होंने कितनी एक्सरसाइज की है। लिखने की, पढ़ने की, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने की, थॉट बुनने की उन्होंने कितनी एक्सरसाइज की है। इससे डिपेंड करता है कि वो कितना स्मार्टली उस कॉन्वर्सेशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंसिस्टेंटली कुछ बात कर सकते हैं, एक मोनोलॉग दे सकते हैं, एक लेक्चर दे सकते हैं, एक डिस्कशन कर सकते हैं। सो इट इज एन एक्सरसाइज, प्लीज अंडरस्टैंड। तो जैसे हम प्राणायाम करते हैं, हवा ली, पूरे शरीर को दी और छोड़ दी, फिर एक और गहरी सांस ली, उसका जो भी फायदा हुआ वो लिया, और एक ही फायदा संभव है कि हम सरवाइव करें। तो वो पहले ही कर रहे थे, इसीलिए डीप ब्रीदिंग का कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। जिन लोगों ने थॉट को बहुत सीरियसली ले लिया होता है, वही तो बात आएगी आगे एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन के अंदर लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? बिकॉज एजुकेशन वॉज नॉट जस्ट supposed to interfere in life, relationships, society and politics। तो जो लोग अपनी पॉलिटिक्स, अपनी एजुकेशन को सोसाइटी को इवेल्युएट करने में लगा देते हैं। सोसाइटी को इवेल्युएट आप कर रहे हो लाइफ बॉय साबुन बेचने के लिए तो भी ठीक है, ठीक है, चड्डी बेचने के लिए, गड्डी बेचने के लिए, कुछ भी बेचने के लिए। और बेच क्यों रहे हो? क्योंकि बेचना है, तो किसी और का सर्वाइवल उस पर निर्भर करता है। और खरीदना किसको है? जो ऑलरेडी सर्वाइव कर रहा है। तो एक बार वो सर्वाइव कर लिया तो उसने फिर कुछ भी खरीद लिया। इसीलिए ये कंसेप्ट भी आता है सेल्स के अंदर। सेल्स के ऊपर जितने भी किताबें लिखी जाती है, जितने भी लेक्चर्स दिए जाते हैं, जितना भी ज्ञान दिया जाता है, वो सब निरर्थक है।
सेल्स कैसे होती है? कुछ नहीं है वो कुछ भी है। तो सेल्स का होना वो कुछ नहीं, कुछ भी है। मतलब क्या हो गया, कैसे हो गया, पता नहीं। तो अगर कुछ हो सकता है तो वो कमरे से बाहर, बिस्तर से उठकर अपने शरीर को कमरे से बाहर ले जाकर हो सकता है, फील्ड में उतरकर हो सकता है। किसी इंसान से बात करो, कुत्ते से बात करो, लड़की से बात करो, दीवार से बात करो, बट बाहर निकलो और बात करो तो उससे कुछ होता है। ठीक है, घर में बैठकर टेलीफोन भी मिला सकते हो तो उससे उससे भी सेल्स हो सकती है, बट करने से होती है चीजें बेसिकली, अगर कुछ होती है तो। अगर कुछ वैसे भी कुछ नहीं होती, वो किसी ने सेल्स कर करके बहुत कुछ बेच दिया और वो बोल रहा है वह बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो गया। वो तो बस सर्वाइव कर ले रहा है। तेरे पेट के अंदर एक फाइनाइट फूड ही जाएगा और फाइनाइट एयर जाएगी और फाइनाइट वाटर जाएगा, तो उससे उसके बाद तू बेकार की बातें कर रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो एजुकेशन है उसका सिर्फ ऑक्यूपाई रहने के लिए। अब ऑक्यूपाई, सुबह से लेकर शाम तक ऑक्यूपाइड कैसे रहे, तो उसमें लोगों ने अपने अपने तरीके निकाल लिए। तो मैं आपको फिर से एक मेट्रिक देता हूं, मेट्रिक METRIC, मेट्रिक मतलब कि कुछ संख्या दे रहा हूं समझने के लिए, अनुपात समझने के लिए, उसके पीछे कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंट्री शब्द है ना, कंट्री शब्द और समाज शब्द है, इनफैक्ट समाज शब्द और कंट्री शब्द है। कंट्री वेंट्री कुछ नहीं होता, काम इसलिए करना पड़ता है। ये बात किसने बोली थी? अब तक 56 में नाना पाटेकर ने बोली थी, कंट्री वेंट्री कुछ नहीं होता, कंट्री वेंट्री कुछ नहीं होता बे, काम है इसलिए करना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भारत के अगर 100 करोड़ एडल्ट्स को पकड़े तो 1% का 1% फिगर हम देते हैं। शब्दों पर आधारित जो भी फेनोमेना है, जो भी कॉन्सेप्ट है, उसको गंभीरता से यदि किसी ने ले रखा है तो वो 1% के 1% लोगों ने ले रखा है, मतलब कि 10,000 में से एक पे ले रखा है। तो 1% देखिए 100 करोड़ का तो 1 करोड़, और 1 करोड़ का भी 1% देखें तो 1 लाख। 1 लाख लोग हैं जिन्होंने सीरियसली ले रखा है समाज शब्द को, देश शब्द को, गरीब शब्द को, अमीर शब्द को, न्याय शब्द को, बराबरी शब्द को, अधिकार शब्द को, स्वतंत्रता शब्द को, प्लीज अंडरस्टैंड, गुलामी शब्द को, स्वतंत्रता शब्द, स्वतंत्रता जो शब्द है ना, चलो पहले मैं स्लैब्स बना देता हूं। तो स्लैब्स अगर देखें तो 100 करोड़ भारतीय हैं, एडल्ट भारतीय हैं, वो सब एडल्ट हैं, एडल्ट एनलाइटेंड है। उसमें से 1% के 1%, 1 लाख लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया इन शब्दों को, मातृभूमि को, देश को, जनतंत्र को, लोकतंत्र को, तानाशाही को, स्वतंत्रता को, गुलामी को, न्याय को, अन्याय को, बराबरी को, प्रतिस्पर्धा को, समानता को, इन सब शब्दों को उन्होंने बहुत गंभीरता से ले लिया है। और जो सरकार के जो लोग हैं, जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, जो विधायक है, जो सांसद है, और जो फुल्ली एनलाइटेंड अधिकारी होते हैं, जो किसी का गला काटने से पहले कतराते नहीं है और जिनको बहुत जल्दी जल्दी पदोन्नति मिलती, पुरस्कार मिलते हैं, रिकॉग्निशन मिलता है और मंत्रालय मिलता है, उन लोगों को अगर पकड़ ले तो, और उनके साथ कुछ गुंडों को भी डाल लें, उनको कुछ उद्योगपतियों को भी डाल लें जो सीरियसली एक प्रकार से राज करते हैं। कौन किस में राज करते हैं? ये देश नाम का जो शब्द है उसमें राज करते हैं ना। किस क्यों राज करते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, किसी को कोई हीरो बनना है, किसी को ताकत चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को काम, कोई काम कर रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी काम कर रहा है किसी के लिए, तो वो वैसे लोगों की संख्या मान लेते 1 लाख। आपको संख्या का मेट्रिक समझ में आ रहा है ना? मोटा मोटा मेट्रिक क्या है? 5:30 हो चुके, तो मोटा मोटा मेट्रिक ये है, 100 करोड़ नागरिक हैं, उनके ऊपर 1 लाख प्लस 1 लाख लोग हैं, मतलब 100 करोड़ में से निकाल लो, और 99 लाख वैसा हो जाएगा ना यार वो, नहीं नहीं, 100 करोड़ में से आपको 99 करोड़ निकालने पड़े, 99 करोड़ 98 लाख। मैं इतना गंदा फिगर देना नहीं चाहता था, बट आप मोटी मोटी बात समझ लो कि लगभग पूरा भारत का नागरिक एनलाइटेंड है। एनलाइटेंड का मतलब ये है कि वो ग्राउंड रियलिटी में है, वो सर्वाइवल में, 9 to 5 में से भी ज्यादा है, कुछ लोग 12-15 घंटे काम करते हैं और कार्य ही पूजा है। मजाक नहीं है ये बात। हितेश शाक्य के मुंह से निकली हर एक बात मजाक हो सकती है, लेकिन ये बात मजाक नहीं है, क्योंकि हितेश शाक्य के मुंह से नहीं निकली वैसे हर एक बात ठीक है। तो ये कार्य कार्य ही पूजा है, और हर आदमी जो कार्य कर रहा है ना वो एनलाइटेंड है।
तो जो आदमी स्कूल नहीं गया, जो आदमी दोपहर तक भी नहीं पढ़ा, ठीक है, जैसे बाबू राव एनलाइटेंड था, वो दोपहर तक पढ़ा था, तो जो आदमी स्कूल ही नहीं गया, दोपहर तक भी नहीं पढ़ा, उसके कान में समानता शब्द का फर्क नहीं, समानता शब्द पढ़ा नहीं उसके ब्रेन में, तो इस बात से वो ग्रसित नहीं है वो कि अंबानी के पास बहुत सारे रुपए आ गए और मेरे पास तो शाम तक का काम करना पड़ेगा ताकि मैं शाम को कुछ रोटी पानी खा लूं, तो कितनी असमानता है। इस बात में वो नहीं मानता क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं, उसको अपनी पूरी बॉडी लेके, अपना पूरा स्वस्थ शरीर लेकर काम कर रहा है, सर्वाइवल वाले काम कर रहा है, जिसके थकने के बाद वो इतना डीप आराम कर रहा है जिस आराम की कीमत करोड़ों रुपए देकर भी नहीं की जा सकती है, दी जा सकती है। ठीक है, सो दोबारा से मैट्रिक पर आ जाते हैं। तो भारत के जो 100 करोड़ लोग हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उनमें से जो नगण्य संख्या में लोग हैं वो संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, मंत्रालयों में बैठे हैं, सचिवालयों में बैठे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से वो क्या करते हैं बेसिकली, उसकी वजह से वो पैसा लूटते रहते हैं, रिसोर्सेज लूटते रहते हैं, और अपने आप को रिकॉग्निशन देते रहते हैं, अपने आप को माना पहनाते रहते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते रहते हैं, अपनी स्पीच देते रहते हैं, उनकी फिल्म बनती रहती है, उसके पोस्टर टंगते रहते हैं, वो कुछ भी है, मतलब उसका कुछ अलग ही चलता रहता है। ठीक है, और उस बात से पीड़ित हो जाते हैं बाकी के 1 लाख लोग, जिन 1 लाख लोगों में मैं भी था टिल 2025। वो लोग, अब इसे पीडोफीलिया जाता है भाई साहब, पीडोफीलिया मतलब जो बचपन से मम्मी लग गई अपने काम पे, पिताजी लग गए अपने काम पे, लेकिन बच्चा देख रहा है टीवी पे, क्या देख रहा है, युग बदला 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 हिंदुस्तान, युग बदला बदला। अरे यार, आपको कैसे पता चल रहा है? जो ऐसे इग्नोर्ड बच्चे होते हैं ना, वो टीवी पर ऐसे गंदी चीज देख ली तो गंदी चीज देख ही ली, गंदी चीज का तो पता चल ही जाएगा कि गंदा आदमी गंदी चीज देख ली, गंदा बच्चा है, गंदी चीजें देखता रहता है, छी छी। लेकिन जब महात्मा गांधी पर फिल्म आ रही किसी संडे को, आप सोचियो, बात करीब होगी 1994, 95, 96 की, महात्मा गांधी पर फिल्म आ रही है, और महात्मा गांधी और बच्चा मुश्किल से 7-8 साल का हितेश शाक्य जैसा बच्चा, जो कि हर एक चीज को कैप्चर करता है, हर एक चीज को कैप्चर करता है। ये होली पर जो हास्य कविता आती थी उसको तुरंत कैप्चर कर लेता था। दीदी गाना चला रही है, पत्थर के सनम तुझे हमने मोह, लोग मुझे बोलते हैं आप तो बड़ा दिल से गाते हो, मैं बोलता मैं दिल से नहीं गाता हूँ, मैं तो बंदर हूँ, बंदर ने रिकॉर्ड कर लिया बचपन से, क्या तो बंदर यहाँ पर उसकी मिमिक्री कर रहा है, पत्थर के सनम तुझे। अभी मैंने वो गाना गाया ना, कांग्रेस कांग्रेस का कॉकरोच पार्टी में जाके, तो गाना गा के मैं नीचे आ गया, तो एक आदमी, मैं नीचे आ गया ना, तो मैं नीचे नीचे ग्राउंड पे आ गया, तो एक आदमी मुझे आके बोलता है कि वो आप लिप सिंकिंग कर रहे थे या फिर गाना गा रहे थे। मैं पीछे बैठ के खाना खा रहा था, मैंने देखा कि इतना बढ़िया गाना कौन गा रहा है और आवाज मतलब होट मैच कर रहे, तो मैं खाना खाते खाते आ गया, तो मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो वहां पर काफी लोगों ने हमारी तारीफ की। तो पॉइंट ये कि ना संगीत का हमें कोई स्किल है और ना ही कोई दिल से हम गाते हैं, हम तो बस बंदर हैं। तो बंदर ने मिमिक्री बचपन से करना शुरू कर दी। तो मतलब पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बचपन से गांधी, अब जैसे गांधी का शॉट दिखा रहे हैं, गांधी का रिक्शे के ऊपर बैठकर आ रहा है और गरीब गरीब दिखा रहे हैं, और उसकी आंखों के अंदर कैमरा डाल दे रहे हैं, और वो देखा, ये ऐसा दिखा रहे हैं कि गांधी देख रहा है कि भारत में कितनी गरीबी है, इस गरीबी को उसको दूर करना। तो ये फ्रेम कैप्चर कर लिया मैंने, तो मेरे अंदर, मेरे जहन में भी कहीं छुप के बैठ गया। भले मैं गांधी का गुलाम नहीं बना या फॉलोवर नहीं बना या भक्त नहीं बना, लेकिन ये बात मेरे अंदर इसने गर्भ धारण कर लिया, इस बात ने, मतलब पीडोफिलिया है ये, प्लीज अंडरस्टैंड। कि मम्मी को पता नहीं मैं टीवी में क्या देख रहा हूँ, मम्मी ने बस इतना, सरकार ने इतना एक्शन कर दिया कि 18+ चीजें नहीं दिखाई जाएंगी बच्चे, हाँ तो बच्चे को 18+ चीजें मत दिखाओ, और गांधी दिखा दिया। तो वो गिरफ्त में आ गया ना। और उसके अलावा फिर वो जहां कहीं भी देशभक्ति की किताबें पढ़ेगा, गाना सुनेगा, वो सारे के सारे न्यूरॉन्स कॉन्स्टेंटली बिल्ड होते चले जाएंगे, बिल्ड होते चले जाएंगे। तो वो जो 1 लाख लोग होते हैं ना, जिन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया होता है, वो वैसे लोग होते हैं। अच्छा, तो बाकी के जो 100 करोड़ लोग होते हैं ना, उनके लिए देश एग्जिस्ट करता है। 26 जनवरी को और 15 अगस्त को देश एग्जिस्ट करता है, प्लीज अंडरस्टैंड। और ये बात मैं सैटायरिकल रूप से और राजनीतिक व्यंग के रूप से नहीं कह रहा हूं कि कभी तो हमारा देश जागेगा और देश की भावना लोग लेकर चलेंगे और प्रतिदिन अपने देश को याद रखेंगे, ऐसा व्यंग से नहीं कह रहा हूं मैं ये यथार्थ से कह रहा हूं। यथा अर्थ जैसा है, और जैसा है वैसा ही है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो सिर्फ एक कल्पना है, वो एक इमेजिनेशन है।
प्लीज अंडरस्टैंड। वो एक विजुअलाइजेशन है, वो रियलिटी नहीं है। वो लिखा था ना, क्या लिखा था, अब ये आते हैं तो मैं आपको क्या बता रहा था, हाँ, ये जो 100 करोड़ नागरिक है ना, इनके लिए देश एग्जिस्ट करता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। 25 जनवरी को, 27 जनवरी को एग्जिस्ट नहीं करता। क्या एग्जिस्ट करता है? बोरियत एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए, जिसको फुल करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्यूपेशन चाहिए होता है। तो ऑक्यूपेशन करते हैं ना वो सुबह से लेकर शाम तक। बीच बीच में नरेंद्र मोदी क्या लौड़े ना बहुत जम कर रहा है और कहां पर जाकर ड्रम बजा रहा है, वो ठीक है, दिखाते रहो। उसके वो गेम है, उसको गेम पकड़ लेते हैं लोग, ठीक है। कोई कोई बोलता है मैं इसका सपोर्ट करूंगा, कोई बोलता है मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो गेम है, उसमें एज्यूम कर लेते लोग अपनी अपनी आइडेंटिटीज, विच इज ऑल राइट। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि कुछ फर्क पड़ता नहीं है, ग्राउंड रियलिटी पर कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कि ये एक हवाई कॉन्सेप्ट है, देश, कंट्री। और तो आपने ये लाइन भी तो सुनी होगी कि हर इंसान चाहता है कि देश में भगत सिंह हो, लेकिन मेरे घर में ना हो, बगल वाले के घर में हो। तो वो जो कैरेक्टर है ना, मतलब भगत सिंह शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं मैं, क्योंकि भगत सिंह का तो अलग ही ब्रांड वैल्यू है। उधम सिंह इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है। तो तीसरा इस्तेमाल कर लेता हूं, जगन सिंह। ठीक है, जगन सिंह नाम का कोई क्रांतिकारी, देशभक्त क्रांतिकारी रहा होगा। वो हमारे घर में पैदा ना हो, पड़ोस में पैदा हो, ऐसा क्यों मानते हैं? मम्मी क्या मानती है, ऐसा पापा क्यों मानते हैं? क्योंकि वो पीडोफीलिया है। प्लीज अंडरस्टैंड। उसके ब्रेन में, उसके दिमाग में ये बात घर कर दी गई है कि उसकी उसकी धरती माता है, उसकी 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 अरे समझ गया ना, उसका मदरलैंड है, उसके लिए उसको लड़ना है, उसके लिए उसको कुछ करना है। और वही और वो गुलाम है। प्लीज अंडरस्टैंड, उसको गुलाम बना दिया गया है और उसको आजाद कराना ही उसके जीवन का उद्देश्य है, और आजादी ही उसकी दुल्हन है। प्लीज अंडरस्टैंड। ये कौन से लोग होते हैं? ये सब जेएनयू और डीयू और ये एएमयू एएलयू वाले तो होते ही है ना बेसिकली, क्योंकि ये पूरा क्या फर्जी चीजें पढ़ते रहते हैं। समाज शास्त्र पूरा फर्जी चीज है। फर्ज मतलब फर्ज क्या हुआ? समाज। प्लीज अंडरस्टैंड, नो डी फिलोसफी हियर। समाज, समाज अपने आप में एक हथेली पर एज्यूम किया हुआ एक एजम्पशन है, जो कभी चल नहीं पाया। इसके अंदर कॉन्स्टेंटली लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लोग एक दूसरे को गलिया रहे हैं, कॉन्स्टेंटली लोग कुछ ना कुछ फरेब धोखाधड़ी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है? रियलिटी में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और एडवेंचर कर रहे हैं। तो समाज की जो परिभाषा है वो कभी भी पिछले 2000-5000 सालों के अंदर जैसी जैसा समाज को होना चाहिए वो कभी हो नहीं पाया, क्योंकि ये हवा के अंदर है। तो मैं हवा के अंदर क्यों बात कह रहा था ये, कि दोबारा पढ़ते हैं इसको, इससे कुछ और रिफ्लेक्शंस निकलेंगे। पॉलिटिक्स इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट ऑलरेडी। मैट्रिक बता देता मैंने, 100 करोड़ लोग, और 100 करोड़ लोग जो है वो फिर, हाँ, वो भी 15 अगस्त को, 26 जनवरी को सुबह 9 से 12 के पीरियड के अंदर ही उनकी देशभक्ति अवेकन होती है। और हाँ, वो देशभक्ति क्या है, अच्छा वो क्या है, वो सिंगल यूनिटरी स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिस्टम है। तो ऐसे नहीं उनके अंदर अवेकन हो गई है, वो भारी पड़ी है। जैसे कि मेरा नाम हितेश शाह के, भारी पड़ा हुआ था, मैं इंसान हूँ, ये बात भारी पड़ी हुई थी। मैं भारत का रहने वाला हूँ, ये बात भारी पड़ी हुई थी। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये बात भारी पड़ी हुई थी। तो सारी बातें भारी पड़ी हुई होती हैं, तो उनको एक्सरसाइज कितना अच्छे से मैं कर सकता हूँ, उसी का तो टेस्ट होता है एग्जाम। रात को एकदम गुट 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 सब कुछ पढ़ लो और सुबह गुट 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 निकाल लो, उसके बाद याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं तो कह ही रहा हूं, एजुकेशन सिस्टम वॉज ऑलवेज परफेक्ट, ऑलवेज। 10 साल मैंने बर्बाद किए उसको रिफॉर्म करने के, एजुकेशन रिफॉर्मर बन के घूमता था, बाकी एजुकेशन रिफॉर्मर से मिलता था। वो सब कौन होते थे? वो सब बेवकूफ ओवर थिंकर। ओवर थिंकर का मतलब है नहीं बहुत ज्यादा ओवर जाके होगा तब उसको ओवर थिंकर कहा जाएगा। वो जहां से उसने नापना शुरू किया ना, जहां से उसने प्रॉब्लम देखनी शुरू करी, बस वो ओवर थिंकर की कैटेगरी में आ गया। मैं तो आपको ही साफ साफ कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ उसका मेजरमेंट, उसका भी कोई मेजरमेंट नहीं है कि ओवर क्या होता है। ओवर कोई तो नॉर्मल थिंकर है, कोई तो डीप थिंकर है, और फिर कोई ओवर थिंकर किसको कहोगे? उसका कोई पैमाना तो है नहीं। तो मैं आपको पैमाना दे रहा हूं, जहां इंसान के मुंह से समस्या निकली कि ये समस्या है, और उसके बाद उसका समाधान निकला, या फिर समस्या निकली, समाधान ढूंढ रहा है, बस वो ओवर थिंकर है। ठीक है।
सो ओवर थिंकिंग कैसे त्यागना, आप एक एक प्रॉब्लम को कंसिडर करो, आपको क्या क्या दिख रही है आपकी बॉडी में, आपके रिश्ते में, आपके बच्चों के साथ में, अड़ोसी के साथ में, पड़ोसी के साथ में, सड़क के ऊपर, राजनीति में, बॉलीवुड के अंदर, जहां भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बस वो आपका आईना है, वो आपको दिखा रही हैं कि क्या दिखा रही हैं। समझ गए ना क्या दिखा रही है? बार बार मैं बताऊं क्या दिखा रही है। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं। एजुकेशन इज परफेक्ट, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स एंड एवेल्यूशन सिस्टम। इवेल्यूशन सिस्टम कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब किसी के नंबर ज्यादा है, किसी के नंबर कम आ गए तो सबको लगा दिए, तो उससे तू तू अपमानित हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, उससे आप अपमानित हो रहे हो।